یہ وہ شہر ہے جس نے صرف چند گھنٹے پہلے تک ایک معزز مہمان کا انتہائی شاندار استقبال کیا تھا۔ 18,000 سے زیادہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور قسمیں کھائی تھی کہ ہم آپ کی اور آپ کے خاندان کی جان دے کر بھی حفاظت کریں گے۔ لیکن اب جب مغرب کی نماز کے بعد اس اکیلے مہمان نے سلام پھیر کر پیچھے دیکھا تو وہ ہزاروں کا ہجوم کہاں غائب ہو گیا۔ کوئی ایک شخص، کوئی ایک سایہ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ عظیم ہستی کوفہ کی انجان گلیوں میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ یہ کہانی ہے تاریخ اسلام کے اس دردناک اور سنسنی خیز باب کی جہاں وفا اور دھوکے کا سب سے بڑا امتحان ہوا۔ یہ کہانی ہے کربلا کی پہلی قربانی کی، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی، جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ اعتماد اور کوفہ والوں کی وہ بے وفائی جس نے کربلا کے خونی مارکے کی بنیاد رکھی۔ آخر اس رات کوفہ میں ہوا کیا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے ایسی کون سی چال چلی تھی کہ 18,000 کا لشکر ریت کی دیوار کی طرح گر گیا؟ اور حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کہ وہ آخری الفاظ کیا تھے جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے رلا دیا؟ آئیے آج ہم تاریخ کے اوراق سے سچائی کی وہ عظیم اور رلا دینے والی داستاں کی طرف چلتے ہیں۔ رجب 60 ہجری کا سال تھا جب امت مسلمہ ایک بہت بڑے انقلاب کے دہانے پر کھڑی تھی۔ معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد یزید نے طاقت کے بل پر خلافت پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام کی تعلیمات کو بدلا جا رہا تھا اور یزید نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ لیکن نواسہ رسول اس ظالم حاکم کے آگے کیسے جھک سکتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جب یہ خبر عراق کے شہر کوفہ پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا ہے تو کوفہ کے لوگوں میں ایک امید کی کرن جاگی۔ کوفہ پہلے بھی خلیفہ وقت حضرت علی علیہ السلام کا دارالخلافہ رہ چکا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں اور عام لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھنا شروع کیے۔ 1 2 10 نہیں بلکہ ہزاروں خطوط مکہ پہنچے۔ ان خطوط میں لکھا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کی قیادت میں حق کی جنگ لڑیں گے۔ خطوط کا یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ نوبت ہزاروں خطوط تک جا پہنچی۔ امام حسین علیہ السلام اتنے بڑے انتخاب پر بلا دلیل کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کوفہ والوں کے ارادوں کو اچھی طرح پرکھنا چاہتے تھے کیونکہ تاریخ میں کوفہ والوں کے مزاج کے بارے میں بہت سی باتیں موجود تھیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سب سے بھروسے مند، بہادر اور عاقل چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بلایا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں کوفہ بھیج رہا ہوں، وہاں جاؤ، حالات کا جائزہ لو۔ اگر تم دیکھو کہ کوفہ کے سردار اور عام لوگ اپنے خطوط پر قائم ہیں تو مجھے فوراً اطلاع دینا تاکہ میں مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو سکوں۔ وہ مکہ سے نکلے، مدینہ گئے، وہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد کوفہ کے اس صحرائی راستے پر روانہ ہو گئے۔ لوگوں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر آ گئے ہیں تو پورا کوفہ استقبال کے لیے امڑ آیا۔ مختلف روایات کے مطابق صرف چند ہی دنوں میں 18,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ کوفہ کا یہ جوش و خروش دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام بہت مطمئن ہو گئے
और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा कि कूफा के हालात बिल्कुल तैयार हैं, आप तशरीफ ले आएं। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि शाम में बैठा यजीद कूफा की इस बगावत को दबाने के लिए एक बहुत ही जालिम और मक्कार शख्स को कूफा भेजने का फैसला कर चुका है। शाम से एक हुक्मनामा निकलता है और कूफा की तकदीर बदल जाती है। यजीद ने बसरा के जालिम हाकिम उबैदुल्लाह इब्न जियाद को कूफा का नया गवर्नर मुकर्रर करके भेजा। इब्न जियाद एक इंतहाई मक्कार, चालाक और बेरहम इंसान था जो अच्छी तरह जानता था कि लोगों के दिलों में खौफ और लालच कैसे पैदा किया जाता है। वो कूफा में इतने चुपके से दाखिल हुआ कि आम लोगों को कानों कान खबर न हुई। उसने स्याह रंग का निकाब ओढ़ा हुआ था ताकि लोग उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझ बैठे। कूफा के लोग इतने बेचैन थे कि वो दौड़े दौड़े आए और खुशी से नारे लगाने लगे कि लेकिन जब ये काफिला दारवाल इमारा यानी गवर्नर हाउस पहुंचा तो उसने अपने चेहरे से निकाब हटाया। लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये नवासहे रसूल नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम उबैदुल्लाह इब्न जियाद था। इब्न जियाद ने कूफा की हुकूमत संभालते ही अपना मक्काराना खेल शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले कूफा के बड़े बड़े कबाइल के सरदारों को मख्फी तौर पर गवर्नर हाउस बुलाया। उसने उन सरदारों के सामने दो ही रास्ते रखे। एक तरफ बहुत बड़ी दौलत, जागीरें और उहदे थे और दूसरी तरफ बेरहम मौत और शाम के शाही लश्कर का खौफ। उसने धमकी दी, यजीद का एक बहुत बड़ा लश्कर शाम से रवाना हो चुका है और जिसने भी मुस्लिम का साथ दिया उसकी नस्लें मिटा दी जाएंगी। ये सुनकर कूफा के खूद गरज सरदारों के ईमान डगमगा गए। वो दौलत की लालच और जान के डर से इमाम अलैहिस्सलाम के सफीर को तन्हा छोड़ने पर तैयार हो गए। इन सरदारों ने गवर्नर हाउस से निकलकर अपने अपने कबीले के लोगों को डराना शुरू किया। अपने मर्दों को मुस्लिम के लश्कर में शामिल मत होने दो और उनकी हिफाजत करो। खौफ की एक ऐसी सर्द लहर चली कि पूरा कूफा बदलने लगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम जो इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार मीसम तम्मार राज़ियल्लाह अन्हो और हानी बिन उर्वा राज़ियल्लाह अन्हो जैसे मखलिस सहाबा के घर के आम पजीर थे, उन्हें एहसास हो चुका था कि घेरा तंग किया जा रहा है। जब इब्न जियाद ने हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के मेहमान नवाज बुजुर्ग सरदार हानी बिन उर्वा रजी अल्लाह अन्हु को बहाने से बुलाकर शदीद जख्मी किया और कैद कर लिया तो पानी सर से गुजर चुका था। हानी बिन उर्वा रजी अल्लाह अन्हु की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आपने कूफा वालों को इनकलाब और जंग की पुकार दी और देखते ही देखते हजारों मसल्लह लोग दारुल इमारा यानी गवर्नर हाउस के बाहर जमा हो गए। ये हजारों का वो लश्कर था जिसके हाथ में नेज़े और तलवारें थीं और जिनके दिलों में बज़ाहिर अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी। उबैदुल्लाह इब्न जियाद महल के अंदर खौफ से कांप रहा था क्योंकि उसके पास सिर्फ चंद 100 सिपाही मौजूद थे। लेकिन इस नाजुक मौका पर इब्न जियाद ने अपनी आलूदा सियासत का सबसे बड़ा पत्ता खेला। उसने महल की छत पर कूफा के उन्हीं सरदारों को खड़ा किया जिन्हें उसने दौलत और उहदों का लालच दिया था। इन सरदारों ने नीचे खड़े अपने ही कबीले के लोगों को पुकारना शुरू किया। उन्होंने कहा कि लोगों, अपने घरों को वापस लौट जाओ। शाम का एक अजीम और बेरहम लश्कर यजीद की क़ियादत में कूफा को नीस्तो नाबूद करने के लिए रवाना हो चुका है। जो अपने घरों को वापस चला जाएगा उसकी जान और माल महफूज रहेगी और जो बगावत पर अड़ा रहेगा उसका सर कलम करके उसकी नस्लें मिटा दी जाएंगी। यह सुनकर भीड़ में एक अजीब सी खलबली मच गई। खौफ की एक ऐसी चादर कूफा पर तन गई कि लोगों के हौसले पस्त हो गए। माओ ने अपने बेटों के हाथ पकड़कर खींचना शुरू किए। बीवियों ने शवहरों का दामन थाम लिया और कहा, खुदा के लिए वापस चलो, हम शाम के इतने बड़े लाश्कार का मुकाबला कैसे करेंगे। लालच और जान का डर ईमान पर गालिब आ गया। एक एक करके लोग पीछे हटने लगे। सूरज गुरूब हो चुका था और मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका था।
हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम मस्जिद में नमाज के लिए खड़े हुए। उस वक्त भी मस्जिद में सिर्फ चंद 100 लोग मौजूद थे, लेकिन जब नमाज खत्म हुई और जब तारीख के उस मजलूम सफीर ने सलाम फेर कर पीछे देखा तो पूरी मस्जिद बिल्कुल सुनसान थी। कोई एक शख्स, कोई एक साया भी वहां बाकी नहीं बचा था। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर आए। कूफा की रात बहुत गहरी और खौफनाक हो चुकी थी। आप एक ऐसी बस्ती में अकेले खड़े थे जहां सिर्फ चंद घंटे पहले 18,000 लोग आपके इशारे पर जान देने के दावे कर रहे थे। आप बिल्कुल तन्हा, शदीद प्यासे और कूफा की अनजान गलियों में बिला दिशा चलने लगे। किसी घर की खिड़की नहीं खुली, किसी ने पीछे से आवाज नहीं दी। ये थी कूफा की वो अजीम गद्दारी जिसने करबला के मैदान को सुर्ख करने की बुनियाद रख दी थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम कूफा की अंधेरी और खामोश गलियों में चलते जा रहे थे। प्यास की शिद्दत से लब खुश्क थे और तन्हाई का ये आलम था कि किसी घर का दरवाजा नहीं खुल रहा था। चलते चलते आप एक मकान के सामने रुके जहां एक ज़ईफ और नेक बीवी खड़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। इस औरत का नाम तवा था, जो दिल से अहली बैत अलैहिस्सलाम की चाहने वाली थी। हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने उस नेक खातून को सलाम किया और बड़े अदब से फरमाया, अस्सलामु अलैकुम। ए खुदा की बंदी, क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिल सकता है? पानी पीने के बाद भी जब आप वहीं खड़े रहे तो तौराह ने कहा, दिया। शरीफ इंसान, तुमने पानी पी लिया है, अब आपने घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है, कूफा के हालात ठीक नहीं हैं। हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने एक गहरी सांस ली और बहुत मजलूमियत से फरमाया, ए बीवी, इस शहर में मेरा कोई घर नहीं है, मैं मुसाफिर हूँ। तवाह ने हैरत से पूछा, तुम इस शहर में मुसाफिर हो, आखिर तुम कौन हो? आपने फरमाया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। ये नाम सुनते ही तवाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीर अकील के बेटे और हजरत अली अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। तवाह ने रोते हुए कहा, ऐ मौला, आप मेरे मकान में तशरीफ लाइए। उसने आपको एक महफूज कमरे में बिठाया और एजाज के साथ खाना और पानी पेश किया। बदकिस्मती से तौगा का बेटा बिलाल जब रात को घर आया तो उसे मालूम हो गया कि इमाम अलैहिस्सलाम का सफीर उनके घर में मौजूद है। सुबह होते ही वो दौलत और इनाम की लालच में दौड़ता हुआ गवर्नर हाउस गया और उबैदुल्लाह इब्न जियाद को खबर दे दी। इब्न जियाद ने फौरन अपने एक कमांडर मोहम्मद बिन अशस को 100 सिपाहियों के साथ हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने जब घोड़ों के टापों की आवाज और तलवारों की झनकार सुनी तो आप समझ गए कि इम्तिहान का आखिरी वक्त आ चुका है। आपने तलवार संभाली और तौवा का शुक्रिया अदा करके घर से बाहर आ गए। आपने फरमाया, मुस्लिम बिन अकील मौत के डर से गहर में छुपने वाला नहीं है। दर्जनों सिपाही ढेर हो चुके थे और कूफा का कमांडर हैरान खड़ा था कि एक अकेला शख्स पूरी फौज पर भारी है। मोहम्मद बिन अशास ने गवर्नर हाउस पैगाम भेजा कि मुझे और फौज भेजो, मैं किसी आम इंसान से नहीं बल्कि बनु हाशिम के एक शेर से लड़ रहा हूँ। इब्न जियाद ने मक्कारी से जवाब दिया कि मैंने तुम्हें एक अकेले शख्स को पकड़ने भेजा है, पूरी फौज से लड़ने नहीं। लेकिन हालात इतने खराब थे कि इब्न जियाद को मजीद लश्कर भेजना ही पड़ा। अब मारका इंतहाई शदीद हो चुका था और हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम चारों तरफ से दुश्मनों के घेरे में आ चुके थे। जब कूफा के सिपाही हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को सामने से शिकस्त न दे सके तो उन्होंने मक्कारी का एक और रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने गली में एक गहरा गड्ढा खोदा और उसे तिनकों और मिट्टी से छुपा दिया। जंग के दौरान हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम का पैर उस दहूके के गड्ढे पर पड़ा और आप उसमें गिर गए। इससे पहले कि आप संभलते, चारों तरफ से दुश्मनों ने आप पर हमला कर दिया। आप शदीद जख्मी हो चुके थे, आपके होंठ कट चुके थे और दांत टूट चुके थे। इस मजलूमियत के हाल में आपको गिरफ्तार करके उबैदुल्लाह इब्न जियाद के सामने दारवाल इमारा लाया गया। जब आप महल में दाखिल हुए तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए।
दुश्मन के एक कमांडर मोहम्मद बिन अशअस ने तंज किया कि जो इतने बड़े मकसद और हुकूमत के लिए निकलता है वो ऐसी मुसीबत पर रोता नहीं है। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने जलाल भरी आवाज में फरमाया, बेखुदा मैं अपनी जान के लिए नहीं रो रहा, मुझे अपनी मौत का कोई खौफ नहीं है। मैं तो अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके मासूम खानदान के लिए रो रहा हूँ जो मेरे खत पर भरोसा करके इस जालिम शहर की तरफ आ रहे हैं। आपने अपनी शहादत से चंद लम्हात पहले मोहम्मद बिन अशअस से फरमाया, अगर तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो मेरा एक आखिरी पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दो। उनसे कहना कि ए इमाम, अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम को लेकर रास्ते से ही वापस लौट जाइए। कूफा वालों ने धोखा दिया है और कूफा वाले झूठे हैं। इब्न ज़ियाद ने बेरहमी की तमाम हदें पार कर दी। उसने हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को दारुल इमारा की सबसे ऊंची छत पर ले जाने का हुक्म दिया। आपको जख्मी हाल में छत पर लाया गया जहां से पूरा कूफा साफ नजर आ रहा था। आपने मक्का मुअज्जमा की तरफ रुख किया जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकदस काफिला रास्ते में था और बड़े दर्द से पुकारा, अस्सलामु अलैका या अब्ना रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के बेटे मेरा सलाम कबूल कीजिए। उसी वक्त जल्लाद की तलवार चली और नुज़ी अल हिज्जा 60 हिजरी को करबला की ये पहली अजीम कुर्बानी मुकम्मल हो गई। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का सर अनवर कलम करके नीचे फेंक दिया गया और आपके जसद खाकी को महल की छत से गिरा दिया गया।